ہرپل جیو ڈرامہ من مرضیاں بن چکا ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ منشا جو ہوتی ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہوتی ہیں اور اس کی ماں کو آتے ہیں بہت بڑی عجیب و غریب خواب، جس کی وجہ سے اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ خواب میں ہی ڈر جاتی ہے اور وہ اٹھتے ہی کرتی ہے منشا کو کال۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے منشا کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے، تو جیسے ہی وہ منشا کو کرتی ہے کال تو منشا جو ہوتی ہے بہت ہی برے طریقے سے اپنا موبائل جا کے پکڑتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں فریکچر ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ جیسے موبائل اٹھاتی ہے اور اپنی مما کا نمبر دیکھتی ہے تو کہتی ہے آگے آپ کا میری یاد آپ مجھے تو لگا تھا آپ مجھے بھول ہی گئی ہوں گی، اور آپ پاپا کو بتا دیں ان کی بد دعائیں جو ہیں وہ اثر کر گئی ہیں، ان کی بد دعائیں جو ہیں وہ مجھے لگ گئی ہیں۔ اس پر منشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہاری اس تربیت میں بھی میری ہی غلطی ہے کہ میں نے ہی تمہاری تربیت صحیح نہیں کی۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے کال مت کیا کریں، اب آپ نے مشین سے مجھے کال کر دی ہے اور بابا کو بتا دیجیے کیا کہ ان کی بد دعائیں جو ہیں وہ مجھے لگ چکی ہیں۔ اس پر منشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں بچے ایسا نہیں کہتے۔ اس پر منشا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رونا اسٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس پر منشا کی ماں کہتی ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے درد ہو رہی ہے اسی وجہ سے رو رہی ہوں، اور وہ کال بند کر دیتی ہے۔ منشا کی ماں جو ہوتی ہے وہ بیچاری منشا ہی کرتی رہ جاتی ہے، لیکن منشا جو ہوتی ہے وہ ان کی بات ہی نہیں سنتی۔ دوسری طرف شجا کا جو دادا ہوتا ہے وہ شجا کو منشا کے ساتھ دیکھنے کے بعد آ جاتا ہے شجا کے کلینک کے باہر، اور وہ اندر نہیں جاتا اور وہیں پہ باہر کھڑے ہی وہ کرتے ہیں شجا کو کال اور کہتے ہیں کہ مجھ سے باہر آ کر ملا۔ اس بار شجا جیسے ہی باہر آتا ہے تو ان کو آ کے کہتا ہے کہ آپ اندر آ جاتے، آپ اندر کیوں نہیں آئے، باہر کیوں تھے؟ تو اس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے بات ہی ایسی کرنی تھی، اس لیے پھر مناسب نہیں لگا تھا مجھے تمہارے کلینک کے اندر آنا۔ اس پر وہ شجا جو ہوتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر اس کا ددو کہتا ہے کہ ہم نے آج تمہیں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا جس کے ساتھ تم گاڑی میں تھے اور تم بہت ہی عجیب بیہیویئر تھا تمہارا اس کے ساتھ، جبکہ تمہارا ایسا بیہیویئر اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو اور تم ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ ہو۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ نہیں ددو ایسی کوئی بات نہیں، وہ میری کوئی کلائنٹ ہوں گے جن کو میں ٹریٹ کر رہا تھا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ بہت ہی پیار سے ٹریٹ کرتا ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے کلائنٹس کو جو ہے وہ کہ جیسے مرضی ٹریٹ کرو، مگر تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو، سیرت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم ہمارے خاندان کے اکلوتے وارث ہو، جبکہ تمہیں ایسی حرکتیں شوبھا نہیں دیتی اور ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ تم ایسا کوئی بھی کام کرو یا تمہارے کردار کے اوپر کوئی بھی داغ لگے۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ کہتا ہے کہ ددو ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کی شادی کر دیجیے۔ اس پر شجا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ددو جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن آج کے بعد ہم تمہیں کسی اور بھی لڑکی کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہ دیکھیں، کیونکہ ہم بالکل بھی نہیں پسند کریں گے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی بیٹھی ہو وہ بھی سیرت کے سوا، اور آپ کسی اور کے ساتھ ایسا بے تکلفانہ رویہ اپنا رہے ہوں جیسا کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ اپنا رہے تھے، جو کہ ہمیں دیکھ کر بالکل بھی مناسب نہیں لگا۔ اس پر جو ہوتا ہے شجا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے کلینک۔ جیسے ہی کلینک جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو کرتی ہے نوکرانی کال اور کہتی ہیں کہ آپ جلدی سے یہاں پہ آ جائیں، مجھ سے نا بیبی سنبھالی نہیں جا رہی، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بہت زیادہ روئی جا رہی ہیں، بہت غصہ بھی کی جا رہی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ منشا نے تمہیں کہا ہے کال کرنے کے لیے؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں انہوں نے مجھے کال کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ میں نے خود ہی کال کی ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے نوکری کرنی ہے نا تو سنبھالو خود کو اور اس کو بھی سنبھالو، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں واپس گاؤں بھیج دوں۔ اس پر وہ کال کٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو تو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی ناشتہ لے کر جاتی ہے نوکرانی منشا کے پاس، منشا اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے ایسے کرو زہر کی گولیاں لا دو۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ تو اتنی پیاری ہیں اور آپ تو دلوں پر راج کرتے ہیں۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں راج کر رہی ہوں، اگر میں ساری عمر ہی ایسے اپاہج ہو گئی تو شجا تو 1 منٹ لگائیں گے مجھے چھوڑنے کے لیے، اور میں تو لگتا ہے موٹی بھی ہو گئی ہوں، اب تو میں بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی۔ تو اس پر وہ جو ہوتی ہے نوکرانی وہ کہتی ہے کہ آپ کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہیں، اور جن سے محبت ہوتی ہے اگر وہ موٹے ہو جائیں گے یا ان کی رنگت چینج ہو جائے تو کیا ہو گیا، محبت تو وہی رہتی ہے نا۔ اس پر وہ جو ہوتی ہے وہ سوچنے لگ پڑتی ہے منشا کہ حمزہ کیسے اسے محبت سے پیار بات کرتا تھا اور کیسے اس کے لیے آئس کریم لے کر آتا تھا جب اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسا انسان ہے کہ اتنا بری حالت میں بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں ہوا کہ 2 دن کی چھٹی لے کے اپنی بیمار بیوی کی حالت کا ہی خیال کر لے، بلکہ اوپر سے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔
दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो अपनी नई गाड़ी लेकर आता है, तो आते ही ज़ारा के हाथ में दे देता है चाबी और कहता है कि बैठो, तुम्हें मैं ड्राइव करवा के लाता हूँ, घुमा के लाता हूँ। तो इस पर जो होती है हमज़ा की माँ वो गाड़ी की चाबी वहाँ से उससे ले लेती है और कहती है कि मेरी गाड़ी में कोई भी नहीं बैठेगा, और तुम हमज़ा पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं ऐसी बातों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि बुरी नज़र जो है वो लग जाती है और मनुष्य जो है वो चीज़ों पर भी आ जाती है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं इसको बैठने दूंगी, और अभी तो मैंने सदका भी उतारना है। इस पर ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है और हमज़ा को चाबी देकर कहती है कि नहीं, आप अपनी गाड़ी का सदका उतरवा लें, ये ना हो कि मनुष्यत आपकी गाड़ी पर आ जाए। ये कहकर वो अंदर चली जाती है और बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है। अपने कमरे में बैठ कर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो इस पर हमज़ा आ जाता है और हमज़ा कहता है कि तुम्हें पता तो है कि अम्मी का नेचर कैसा है, तो तुम क्यों ऐसा गुस्सा कर जाती है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करती, वो सिर्फ वही एक इंसान है जो कि मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि मैं हूँ कौन, मेरा ताल्लुक़ किस इंसान से है और किस ख़ानदान से है। जबकि मेरी परवरिश भी तो अब्बा ने ही की है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फूफा जो है वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर रखती हैं। जबकि अगर मुझे पता होता कि मेरे माँ बाप ऐसा कोई कदम उठाने लगे हैं तो मैं उनको खुद रोकती, बल्कि उनको ऐसा कुछ करने ही ना देती। इतने में ही आ जाती है हमज़ा की माँ, और हमज़ा की माँ कहती है कि हाँ, उनका तो नसीब ख़राब था, लेकिन तुमने अपना नसीब बहुत अच्छा कर लिया, मेरे बेटे को अपने आंसुओं के चक्कर में फंसा लिया और उससे शादी कर लिया, और आज मेरे घर में मेरी बहू बन के बैठी है। जबकि मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, मेरा तो दिल करता है कि तुम्हें एक मिनट ना लगाओ, यहाँ से निकाल दो। इस वजह होता है हमज़ा वो कहता है कि अम्मी आपको क्या हो गया है, आपके ज़ुबान से ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। इतने में ही हमज़ा की माँ तो रोने लग पड़ती है और कहती है कि हाँ बेटा, अब तो तुम्हें अपनी बीवी की ही बातें नज़र आएंगी, अब तो तुम्हें सिर्फ ये नज़र ही आती है, बल्कि मैं नज़र नहीं आती। इसमें हमज़ा कहता है कि अम्मी क्या हो गया, मैंने आपको क्या कहा। इस पर वो ज़ारा को कहता है जाओ पानी लेकर आओ। ज़ारा पानी लेकर आती है तो हम जो होती है उसकी पप्पी वो कहती है कि मैंने पानी नहीं पीना। इस बार हमज़ा कहता है कि मुझे दो, मैं पिलाते हैं। इस पर हमज़ा जो होता है वो पानी पकड़ लेता है और उसको पिलाता है, तो थोड़ा सा वो आराम में आती है, लेकिन वो कहती है कि तुम जो है वो इसकी बातों में आ जाते हैं और तुम्हें माँ तो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। हमज़ा की माँ तो हमज़ा को कहती है कि तुम ऐसे करो, ज़ारा को अभी के अभी इसके बाप के घर छोड़ो। इस पर वो कहता है कि क्यों, इस रात के इस टाइम मैं उसको क्यों छोड़ के आऊँ। इस पर वो कहती है कि इस टाइम नहीं, बल्कि हमेशा के लिए छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर रहे। कल को अगर तुम्हारे बच्चों की माँ बन के बैठ के तो मैं कैसे इसको बर्दाश्त करूँगी। इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि अम्मी क्या हो गया है, ज़ारा की तरबियत भी तो आपके भाई नहीं की है, और आप क्या चाहती हैं कि मैं आपके भाई को तकलीफ़ दूँ। इस पर जो होती है हमज़ा की माँ कहती है कि तो क्या हो गया, सारे जहाँ की तकलीफ़ ना देने का ठेका मैंने लिया है। इस पर जो हमज़ा होता है वो कहता है कि अम्मी आप अच्छा ठीक है ना, छोड़ दें। इस पर वो कहती है हाँ, तुम्हें तो सिर्फ वही नज़र आती है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा बीपी चेक कर लो, लेकिन ना तुम्हें तो सिर्फ उसके आंसू हैं, उसके आंसू पूछने बैठ के मेरा बीपी चेक नहीं किया। इस पर हमज़ा कहता है कि अच्छा अम्मी मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे ही हमज़ा जो होता है वो किचन में जाता है तो पानी पीने लगता है, तो उसी टाइम उसको मंशा याद आ जाती है कि कैसे वो उसके ख्याल रखता था, लेकिन वो जो भी मंशा थी वो उसको इतनी ज़्यादा बातें सुनाती थी, तंज करती थी। लेकिन ज़ारा जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, और ज़ारा उससे बात कर रही होती है कि मैं ग्रोसरी का कोई सामान मंगवाना है तो मैं आपको लिख देती हूँ, तो आप ला दीजिएगा। तो इतने में जो होता है हमज़ा उसकी बात ही नहीं सुनता, तो ज़ारा कहती है कि हमज़ा क्या हो गया, आप मेरी बात सुन रहे हैं कि या नहीं। तो इस पर हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हाँ सुन रहा हूँ, तुम्हें लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ ही चलो, ले लेना। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा से डांट सुनूँ। इस पर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आजकल मैं ही तुम्हारी डांट भी मैं ही सुन रहा हूँ, और क्या हो गया, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इस बार जो होती है ज़ारा वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। ज़ारा जो होती है वो कपड़े चेंज करके उसके साथ जाती है, तो ग्रोसरी का सामान लेने के बाद वो जाते हैं आइसक्रीम खाने। तो जैसे ही आइसक्रीम खाने जाते हैं तो हमज़ा जो होता है वो आइसक्रीम नहीं खा रहा होता, तो ज़ारा कहती है क्या हो गया, अगर तुमने आइसक्रीम नहीं खानी थी तो लेते ही ना। इस पर वो कहता है कि नहीं मैं खा रहा हूँ, बहुत मज़े की। इस पर वो कहता है कि तुम क्या हो गया, तुम्हें नाराज़ होने लग पड़ी हो। इस पर वो कहती है कि नहीं नाराज़ नहीं हो, मुझे बल्कि गुस्सा आ रहा है। अगर इस वक्त तुम्हारे साथ मंशा होते तो तुम आइसक्रीम बहुत ही मज़े से खा रहे होते, वो भी चम्मच बढ़ के, लेकिन इस टाइम मैं हूँ ना, तो इसी वजह से तुम आइसक्रीम नहीं खा रहे होते। इस पर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इस पर वो कहती है बात तो है, अगर वो होती तो ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन पता नहीं क्या है, या तो मेरी किस्मत ख़राब है या वक्त ख़राब है। इस पर हमज़ा कहता है कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे सितारे जो है वो गर्दिश में है। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि चले खाने आइसक्रीम, मेरे घर भी जाना है और डांट भी मुझे ही पड़ेगी। इस पर जो हमज़ा होता है वो कहता है कि नहीं आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल तुम्हारे हिस्से की भी डांट मैं ही सुन रहा हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो चुप कर जाती है।
दूसरी तरफ हादी जो होता है वो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए। इस पर उसकी बहन कहती है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि दादू जो हैं वो शुजा के साथ क्या करते हैं, जब शुजा उनको खुद ये सब कुछ बताएगा। इस पर जो होता है हादी वो कहता है पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना सब्र क्यों है, मैं सब बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं झूठे को झूठे के मुँह पे कहता हूँ, वो भी डंके की चोट पे, और मैं किसी से डरता भी नहीं। अगर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, मैं क्यों किसी को झूठ बोलूँ। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि अब जो भी हो चुका है वो उसका इतराफ़ जो है वो शुजा खुद ही करे तो बेहतर है। इस पर वो कहता है कि पता तुम्हारी ज़िंदगी भी और ज़ारा की ज़िंदगी भी सिर्फ एक इंसान ने बर्बाद की और वो है मंशा। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि तुम्हें क्या पता, ज़ारा तो खुश ही है और मैंने उसको देखा। इस पर वो कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं खुश, मैं अच्छे से जानता हूँ। इस पर जो होती है सीरत वो कहती है कि अब अगर मंशा ना होती तो कोई और होती, ज़िंदगी तो बर्बाद होनी ही थी। इस पर जो होता है हादी का भाई हादी वो कहता है कि तुम बहुत ही सब्र वाली हो, पता नहीं तुम ऐसी क्यों हो, मैं तुम्हें अभी भी कहूँगा कि तुम्हें सब कुछ सब सच सच बता देना चाहिए। लेकिन सीरत जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं बताते। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि जैसे ही शुजा आता है घर तो सब लोग ही घर होते हैं, तो सीरत की माँ जो होती है वो शुजा के दादू के सामने ही कह देती है कि शुजा तुम्हें सब कुछ सच सच खुद ही बता देना चाहिए, ये ना हो कि हम लोग खुद बताएं, अगर तुम बताओगे तो बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए भी। इस पर जो होता है होगा उनका दादू वो कहेगा कि ऐसी कौन सी बात है जो नहीं बताई। इस पर जो होते हैं वो शुजा बता देगा अपनी शादी के बारे में, तो दादू के तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाएगी। वो कहेंगे कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसी कौन सी गलती हो गई थी हमारी तरबियत में जो कि तुमने ये कदम उठा लिया। उनका तो हालत ही बुरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हादी जाएगा मंशा के पास और जाके उनको कहेगा कि शुजा ने तुमसे शादी किसी गलती में की, किसी दबाव में आके कर ली, वरना वो तो तुमसे शादी कब बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। इस पर जो मंशा होगी वो हादी को कहेगी कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर वो कहेगा अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आ जाओ मेरे साथ घर जाके सब कुछ देख लो सच सच। इतने में पहले ही गल तमाशा लगा होगा, हादी जो है वो ऊपर से मंशा को ले आएगा और ज़्यादा तमाशा हो जाएगा। बहुत ही अगले वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और शुजा और मंशा का तो बुरा हाल होने वाला है। और आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।